Morning, everyone. I'm Dr. Swati Atri, Assistant Professor from Department of Computer Science and convener of Research and Development Cell, Arikanya Mahavidyalaya Shahabad. Welcome you all in this one-day national level workshop on role of IPR in academia and research. On behalf of Research and Development Cell, I welcome our resource person, Mr. Prateek Srivastava, founder and patent attorney at PNA Intellectual Property and Technology Attorneys. Madam Principal, Dr. Atik Rehan, our participants, including faculty members, academicians, research scholars, and students who have joined us from different states of the nation to attend this one-day national workshop. The national workshop is being organized by Research and Development Cell under the guidance of IQAC and Institutions Innovation Cell, Arikanya Mahavidyalaya Shahabad. Let's start the event with the holy tradition of lamp lighting ceremony. Seek the blessings from Ma Saraswati, the goddess of knowledge. कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् Thank you all. So moving ahead, I request our principal, Madam Dr. Atik Rehan, for the welcome address. कुन्देन्दुतुषारहारधवला
Good morning, everyone. Honorable and esteemed resource person, Mr. Prateek Srivastavaji, of our one-day nationals workshop on role of IPR in academia and research, worthy participants from all over India, worthy faculty members of Arya Kanya Mahavidyalaya, convener of workshop, Dr. Swati Atri, and all the members of organizing team. Very warm greetings to all. It is with immense pleasure and honor that I am here today to welcome you all to this one-day national workshop on role of IPR in academia and research, organized by Research and Development Cell of Arya Kanya Mahavidyalaya, Shahabad, under the aegis of IIC and IQAC. I extend a very warm welcome to all who have joined us today from all over India. Friends, we all know that human beings possess intellect which makes them superior over other living creatures, and hence various intellectual properties are being created in different endeavors of humans. Moreover, in today's fast-paced world of innovation and discovery, intellectual property plays a crucial role in fostering creativity, protecting original ideas, and encouraging knowledge dissemination. In academia and research, where new ideas and breakthroughs are constantly being developed, understanding and utilizing IPR is essential for both individuals, researchers, and institutions. University and research institutions are hubs of knowledge creation. IPR ensures that researchers and inventors are rewarded for their contributions, motivating them to continue innovating. Researchers with patented innovations or copyrighted work gain recognition, leading to better opportunities for them. Without IP protection, groundbreaking discoveries can be misused or claimed by others. Patents, copyrights, and trademarks safeguard the rights of the original creators. But despite its significance, many researchers and academicians remain unaware of how to effectively utilize IPR. As members of academic and research community, it is our responsibility to not only generate knowledge, but also protect and apply it for society's benefit. Workshops like this are crucial in spreading awareness about IPR, ensuring that our intellectual contributions are valued, recognized, and utilized effectively. To guide us in this significant dialogue, we have Mr. Prateek Srivastavaji as our esteemed resource person, who is founder and patent attorney at PNA Intellect Property and Technology Attorneys. Sir, your vision, expertise, tireless dedication to the cause of intellectual property have left an indelible mark. It is my privilege and honor to extend a warm welcome to you for being esteemed resource person for one-day workshop on role of IPR in academia and research of Arya Kanya Mahavidyalaya, Shahabad. Your presence today enriches our workshop. A very warm welcome to you, sir. We eagerly look forward to your invaluable insights. We express our heartfelt gratitude to you, sir, for accepting our invitation and gracing us with your presence during the workshop. We are confident that your words will leave lasting insights on intellect to all the participants. Now, I extend my warm welcome to all the participants and faculty members joining us today from all over the nation. I extend my best wishes and congratulations to convener of workshop, Dr. Swati Atri, and all the members of organizing team for organizing this workshop of large importance. I hope this
workshop is going to equip all the participants with knowledge to protect their intellect assets, navigate legal challenges, and leverage intellectual property for growth and innovation. I encourage all the participants to take full advantage of this opportunity to deepen their understanding of IPR. Once again, I welcome you all and look forward to an enriching session during the day ahead. With these words, thank you. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Madam Principal. A very warm welcome to each one of you to this one-day national workshop on role of IPR in academia and research. It is indeed a privilege to stand before this august gathering of scholars, researchers, academicians, and industry experts who share a common goal to explore the significance of IPR in fostering innovation, safeguarding intellectual contributions, and driving research excellence. In today's rapidly evolving knowledge economy, intellectual property rights serve as a cornerstone of innovation and creativity. Whether it's scientific discoveries, technological advancement, or academic research, the protection of intellectual assets is not just a legal necessity, but a strategic imperative. This workshop aims to create awareness, provide insights, and encourage dialogue on how IPR can be leveraged effectively in academic and research domains. We are honored to have with us distinguished experts who will be sharing their invaluable perspectives on various aspects of IPR, from patent and copyright to commercialization and ethical consideration. I am confident that today's discussion will enrich our understanding and inspire us to integrate IPR practices into our academic and research endeavors. So with these objectives, the motivation which we have received from the participants who have joined us from all over the nation and to meet the expectation of the academic community, we have organized this one-day national workshop on the role of IPR in academia and research. With this, I once again extend my heartfelt welcome to all of you. Now there are some instructions. Kindly turn off your mic and cameras during the session, as the sessions are being recorded. So for the purpose of issuance of certificate, it's mandatory to active during entire workshop. If you are having any query or question, you can post them in the chat box or raise your hand on the Google Meet. We will be taking all of your queries at the end of the workshop in the discussion session. So without taking much time, I would like to welcome and introduce our resource persons for today's workshop, Mr. Prateek Srivastava, founder and patent attorney at PNA Intellectual Property and Technology Attorneys from Gwalior, Madhya Pradesh. Mr. Prateek is practicing patent attorney based in India. He's an electronics and communication engineer and an advocate registered with the Bar Council of India. He is also an effective patent startup facilitator under the Government of India's Startup India Intellectual Property Scheme, bringing extensive expertise in intellectual property law. Mr. Prateek specializes in advising clients on the production and management of their IP assets. He represents clients across a diverse range of sectors, including IT, electronics, fast-moving consumer goods, and academic institutions, including renowned universities such as IITs and NITs, as well as professors and scholars. In addition, Mr. Prateek has signed MOUs to promote innovation and build an IP ecosystem in India, in collaboration with various institutes and incubation centers. He is a regular speaker at prominent IP forums, including those organized by the Cell for IPR Promotion and Management under the Government of India, the Madhya Pradesh Council of Science and Technology, and several incubation centers and technical universities. Mr. Prateek also served as an IP mentor to various
Incubation Center and Technical University all over the India. He is an active member of respected national and international organizations such as International Association for Protection of Intellectual Property, that is AIPTI, and the Society of Automotive Engineers in the India, and MSME Startup Forum. He is also an empaneled legal expert on committee formed under the Government of India's PEDA scheme, working with institutions like MITS Gwalior, ITM Gwalior, and Ramarao Adik Institute of Technology, Mumbai. At PNA Intellectual Property and Technology Attorneys, Mr. Prateek oversees all aspects of firm's operation, focusing on both technical and legal dimensions of IP and business intelligence. So it's our privilege that such a great and versatile personality has joined us. So we are highly grateful for joining us. And I'm sure all the participants will going to enhance their knowledge and with your expertise in the field. With this, I once again extend my heartfelt welcome to all of you. Let us engage, learn, and contribute toward a future where knowledge is not only created but also protected and utilized for the greater good. Now, without taking much time, I would like to hand over the session to Mr. Prateek Srivastava, our esteemed speaker of today's workshop. Over to you. Good morning, everyone. My name is Prateek Srivastava, and I would like to thank each one of you for giving me this kind of opportunity. My session for today is on intellectual property rights. I hope you can see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Nine. Yeah. So, नहीं सरपंच साहब सही बात है दो छोटी कौन है स्टार्ट करें? Request. I request all the participants to turn off your mic, please. Yeah, okay. Thank you. So, I will try to speak in both English and Hindi. ज़्यादातर हिंदी में बात करने की कोशिश हम करेंगे so that we can understand कि intellectual property rights क्या होते हैं और patents का क्या रोल है academia में, how they are important, copyrights क्या होते हैं, trademarks क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम बात करें पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट की, ये सारी चीजें जितनी हम सोचते हैं कि अभी होना स्टार्ट हुई हैं, ऐसा नहीं है. पहला पेटेंट वर्ल्ड में फाइल हुआ था 1421 में और इंडिया में फर्स्ट पेटेंट फाइल हुआ था 1856 में. तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट है, ये अभी 2018-19 के बाद जब से गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है तब से होना स्टार्ट हुआ है. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मैकेनिज्म है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. इंडिया में इसकी अवेयरनेस लेट आई है लेकिन वर्ल्ड वाइड ये काफी रिकॉग्नाइज था. तो अगर हम देखें यूएस और यूरोप, इनकी जो इकोनॉमी है वो 40 to 50% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड है. उसका मतलब ये है कि जो भी यूएस और ईपी में इनोवेशन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी मेडिसिन बनते हैं, उनकी कंपनियों के पास, उनके इनोवेटर्स के पास उनका आईपी है, यानी उन लोगों ने पेटेंट फाइल किया हुआ था मतलब, और अभी भी करते हैं और आगे भी उनकी जो नंबर ऑफ पेटेंट फाइलिंग्स हैं वो काफी इंक्रीज होने वाली है. इंडिया भी काफी पीछे है उनसे, है ना. तो उनकी जो इकोनॉमी है काफी क्लोज इकोनॉमी है, मतलब उनकी जो आईपी बेस्ड इकोनॉमी है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपने राइट्स किसी और कंपनी को ट्रांसफर नहीं करते हैं. वो किसी और कॉम्पिटिटर को एंटर नहीं होने देते मार्केट में. अगर कोई एंटर होने की कोशिश
करता भी है तो उनके पास उनके आईपी हैं, तो उनके खिलाफ वो कोर्ट केसेस डाल देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है आईपी का। तो अब चूंकि फर्स्ट पेटेंट जो है वो 1421 में फाइल हुआ, इंडिया में 1856 में फाइल हुआ, तो फिर आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट इन 24-25? इसका रीजन ये है कि जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, 2014-15 में, तो एक कंसल्टेटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसमें ये जानने की कोशिश की गई कि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा क्यों हैं और एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं। मतलब हम लोग इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं और एक्सपोर्ट क्यों नहीं होते हमारा। मतलब अगर हमको चम्मच भी खरीदनी है तो वो चाइना से क्यों आती है। अगर हमको कोई डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदना होता है तो व्हाई आर नॉट वी एक्सपोर्टिंग, हम इतना इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो आंसर निकल के आया, जो ओपिनियन निकल के आया वो ये था कि क्योंकि हमारे पास उन प्रोडक्ट्स का कभी आईपी नहीं रहा। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं इंडिया में, तो चूंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, तो वो चोरी हो जाता है। तो चाइनीज कंपनी क्या करती है कि उसी सेम चीज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपना पेटेंट ले लेते हैं और हमको ही वो क्या नाम कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और हम उनको रॉयल्टी पे क्या नाम करते हैं हर साल। तो ऐसा क्यों है? तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनाई, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी बनाई, आपका स्किल इंडिया पॉलिसी बनाई, मेक इन इंडिया पॉलिसी बनाई। तो इन सब का जो कंक्लूसिवली जो बात थी वो यही थी कि आप जो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उसका पेटेंट लेना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ने 2014, 15, 16 के आसपास ये बोला था। तो जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनाई गई उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको जितने कॉलेजेस हैं इंडिया में, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड ऑफिसेज हैं, वहां पे जाके हमको अवेयरनेस करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, so that people will start exploring this option and they will also start filing patents and trademarks. तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था। फिर सेकेंडली एक इशू निकल के आया कि ठीक है, अगर पेटेंट फाइल करना भी है, ट्रेडमार्क फाइल करना भी है, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है इंडिया में। मतलब क्योंकि ये जो पेटेंट ट्रेडमार्क है ये सारे फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये तो इंडिया में तो अभी होना स्टार्ट हुआ है। तो ये इतना महंगी प्रोसेस है, इसको एक आम आदमी जिसने कुछ इनोवेट किया है, जो कि रूरल एरिया से है, वो कैसे उसको अफोर्ड क्या कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल फीस थी वो इतनी वो कर दी, कम कर दी कि कोई भी एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी कर सकता है वो उसको अफोर्ड करके एटलीस्ट एक पेटेंट फाइल कर सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि हम 24-25 में आज हम कई सारे कॉलेजेस में देख रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। कई सारे कॉलेजेस में आईआईसीज बनाए गए हैं, कई सारे कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाएं और इंस्टेड ऑफ सीकिंग जॉब, मतलब वो नौकरी ढूंढने ना जाते हुए वो नौकरी क्रिएट करने की कोशिश क्या नाम करें। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए, आईआईसीज बनाए गए, इन सब में आईपीआर सेल्स क्या बनाए गए, आईपीआर सेल्स के हेड बनाए गए। हमारे जैसे जो अटॉर्नीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको बोला क्या गया कि आप कॉलेजेस के संग कोलैबोरेट करके उनके संग वेबिनार ऑर्गेनाइज क्या नाम कीजिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। तो 24-25 में आज हम इस कंडीशन में आ पाए हैं कि जो हमारे पेटेंट फाइलिंग्स हैं हर साल 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं, जो कि पहले हम लोग सिर्फ 2 से 3 हजार के आसपास, आज से 9-10 साल पहले होते थे, जो कि अब 1 लाख के आसपास हो गए हैं। ट्रेडमार्क की फाइलिंग्स इंक्रीज हो गई है, कॉपीराइट की फाइलिंग्स इंक्रीज हो गई है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट की ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसमें एक आईपीआर पॉलिसी बनाई गई। आईपीआर पॉलिसी के अंदर हमने अवेयरनेस करना स्टार्ट
क्या नाम किया, तो आज हम इस कंडीशन पे आ पाए हैं कि एटलीस्ट हमारी जो पेटेंट फाइलिंग्स की जो रैंकिंग है एटलीस्ट हम टॉप 10 में आ गए हैं, राइट। तो वो लाइकली है कि हम और भी आगे इंक्रीज होंगे, पर लेकिन ये सब इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। अब अगर हम टॉपिक के पर आए, टॉपिक का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब अगर हम सीधा सीधा बात करें तो टॉपिक का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सबसे कॉमन वर्ड है वो है वर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को अगर हम डेफिनेशन वाइज जानने की कोशिश क्या नाम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या तो वो मूवेबल है या इमूवेबल है, या तो वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल फॉर्म में। अगर आपके पास उसकी कुछ कंट्रोल है दैट मींस इट इज योर प्रॉपर्टी। अब इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश क्या नाम करें, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपर्टी की बात होती है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज के राइट्स है, उस पर्टिकुलर चीज का कंट्रोल है। अब फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, मेरे पास अगर मेरा फोन है, अगर मैंने उसको क्या खरीदा हुआ है तो मेरे पास उसको खुद भी यूज करने का राइट है। मैं उसको बेच सकता हूँ, मैं उसको अपने पेरेंट्स को देना चाहूँ, पेरेंट्स को दे सकता हूँ, मैं इसको अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने इसको एक्वायर किया है किसी शॉप से, किसी दुकान से खरीदा हुआ है मैंने इसको, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स कैन कंप्लीट है, चूंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इसके राइट्स हैं, है ना। अब प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन, हमारा फर्नीचर ऑफिस का, हमारा ऑफिस स्पेस, साइकिल, लैपटॉप, माइक, तो ये सारी चीजें टेंजिबल फॉर्म में, क्योंकि आप इनको देख सकते हो, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब इसके अतिरिक्त एक और प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको हम इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके हम अगर एग्जांपल में जाएं तो जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके इनोवेशंस हैं, जो आपके आर्टिस्टिक क्रिएशंस हैं, जो आपके फॉर एग्जांपल अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये सारे इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ इतना है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अपने इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप उनको टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, और उस कन्वर्जन के दौरान मतलब इंटेंजिबल से टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में कोई लीगल इश्यू ना आए, और आपके पास उस इन्वेंशन के राइट्स हों, उस इनोवेशन के राइट्स हों, उस आर्टिस्टिक क्रिएशन के राइट हों आपके पास। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी इनोवेशन बनाया है, जो भी आपने चीज करी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक पूरा डेडिकेटेड मैकेनिज्म है। जैसे कि फॉर इनोवेशंस हमारे पास पेटेंट्स है, फॉर ब्रांड प्रोटेक्शन वी हैव ट्रेडमार्क्स, फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन वी हैव कॉपीराइट, फॉर योर ज्योग्राफिकली ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, प्लांट वैरायटीज है, सेमीकंडक्टर्स है। तो ये सारे आईपीज हमारे इंडिया में हैं, राइट। तो अगर हम बेसिक्स की बात क्या नाम करें तो पेटेंट्स इनोवेशन के लिए मिलता है। मतलब कोई भी ऐसी इन्वेंशन है, आपने कोई साइंटिफिक एबिलिटी को यूज करके कोई चीज अगर आपने बनाई है तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो। कोई भी आपने ब्रांड अगर बनाया है तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। अगर आपने कोई आर्टिस्टिकली चीज कोई आपने ये बनाई है, जैसे कि आपने कोई पेंटिंग आपने बनाई है, कोई सॉन्ग आपने लिखा है, कोई पोएम आपने लिखी है, या कोई बुक आपने लिखी है, तो इन सब चीजों के लिए आप पेटेंट नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क नहीं कर सकते, उनके लिए आप कॉपीराइट कर सकते हो। एक हमारे डिजाइन राइट्स भी होते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपने शेप में कुछ आपने काम किया है, जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई, आपके ज्वेलरी के अलावा कोई मशीन है जिसका आपने शेप चेंज किया है,
तो उसके लिए आप पेटेंट ना फाइल करते हो, डिजाइन एप्लीकेशन क्या नाम करेंगे फाइल, तो आपको कुछ राइट्स उसमें होते मिलते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है हमारे पास, प्लांट वैरायटीज है गवर्नमेंट वो ये आईपी के अंदर, सेमीकंडक्टर्स है। तो अगर हम पेटेंट्स की डेफिनेशन वाइज जाएं या पेटेंट को समझने की कोशिश क्या नाम करें, तो पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पेटेंट एक राइट है जो एक लिमिटेड समय के लिए मिलता है एक इन्वेंशन को, है ना। अब इन्वेंशन का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस अगर आपने क्रिएट किया है तो हम उसको गवर्नमेंट इसको पेटेंट ऑफिस के टर्म में उसको हम इन्वेंशन कंसिडर कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी चीज आपने बना दी और उसमें आपने अपनी साइंटिफिक एबिलिटी का यूज नहीं उसमें हुआ है। पेटेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस अपनी साइंटिफिक एबिलिटी को यूज करके बनाया है तो ही वो इन्वेंशन कंसिडर होगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेंशन, राइट। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर कोई इन्वेंशन है जो कि प्रोडक्ट या प्रोसेस है तो हमको किस प्रकार के राइट्स मिलते हैं पेटेंट ऑफिस से। अगर मैंने पेटेंट अप्लाई किया है तो मुझे किस प्रकार के राइट्स उसमें होंगे मिलेंगे। तो पहला तो राइट मिलेगा कि मैं खुद उस इन्वेंशन को यूज कर सकता हूं और मैं लोगों को रोक सकता हूं टू यूज माय इन्वेंशन। मतलब मेरे पास ये तो राइट है कि मेरे पास मैं अपनी इन्वेंशन को कर सकता हूं यूज, मेरे पास ये भी राइट है कि मैं आपको रोक सकता हूं कि नहीं आप मेरी इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो आपको पहले मेरे से परमिशन लेनी होगी, आपको मेरे को रॉयल्टी पे क्या नाम करनी होगी, तभी आप मेरी इन्वेंशन को यूज कर सकते हो। अगर आप विदाउट माय परमिशन अगर आप मेरी इन्वेंशन को क्या नाम करते हो यूज, तो इन दैट केस मेरे पास पूरे लीगल राइट्स है, मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, राइट। ये है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये राइट्स मिलते हैं तो ये राइट्स ग्रांट कौन करता है। तो राइट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है डीपीआईआईटी और डीपीआईआईटी के अंदर आते हैं इंडियन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो इंडियन पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस जो है उनके पास राइट है आपको इन्वेंशंस का पेटेंट देने का। वो चेक करते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोसेस बनाया है, वो पेटेंटेबल है कि नहीं। इफ इट इज पेटेंटेबल वो आपको पेटेंट राइट्स दे देते हैं, इफ इट इज नॉट पेटेंटेबल तो वो आपको पेटेंट राइट्स नहीं उसमें देंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर राइट्स हैं किसी इन्वेंशन के तो वो क्या लाइफ टाइम के लिए। आंसर इज नो। पेटेंट राइट्स जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। मतलब जो हमको राइट्स मिलेंगे सिर्फ 20 ईयर्स के लिए होते हैं। 20 ईयर्स के बाद कोई भी इस इन्वेंशन को यूज कर सकता है और आपके पास कोई लीगल राइट नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे पास राइट होता है वो लाइफ टाइम होता है, पर पेटेंट के केस में जो राइट्स होते हैं वो 20 ईयर्स के लिए होते हैं। 20 साल के बाद आपके पास उसका राइट नहीं होगा। अगर कोई यूज करता भी है तो फिर आपके पास कोई लीगल राइट नहीं होगा, आप एक्शन नहीं क्या कर सकते, ले सकते। अब द पॉइंट इज कि अगर कोई इन्वेंशन है जो कि प्रोडक्ट या प्रोसेस से, क्या हर प्रकार की इन्वेंशन पेटेंट हो सकती है? आंसर इज नो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई प्रोसेस बनाया है, अगर वो यूनिक है, इन्वेंटिव है और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है तो उसी केस में आप उसका पेटेंट फाइल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 30 साल पुराना कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको यूज करके आपने उसका वो क्या कर दिया, पेटेंट फाइल कर दिया। नहीं, वो पेटेंट राइट्स नहीं आपको इसमें मिलेंगे। पेटेंट हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी इन्वेंटिव एंड इट हैज टू बी इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल। अगर ये तीनों क्राइटेरिया में फॉल होता है देन यस आपको पेटेंट मिल सकता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की इन्वेंशंस जो कि यूनिक हैं, इन्वेंटिव हैं, वो पेटेंटेबल हैं। कई एक ऐसी इन्वेंशंस भी होती हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा हुआ है कि इनमें हम पेटेंट नहीं आपको उसमें देंगे। जैसे कि कोई भी आपने इन्वेंशन जो कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट है तो दैट इज नॉट पेटेंटेबल। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि नेचुरल लॉज के अगेंस्ट है दैट इज ऑल्सो नॉट पेटेंटेबल। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल को ट्रीट कर रही है, मतलब उनको कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सर्जिकल प्रोसेस है, डॉक्टर अगर चाहे अपनी सर्जिकल प्रोसेस को पेटेंट करना तो दैट इज नॉट अलाउड। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मैथमेटिकल इक्वेशंस, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी पेटेंटेबल नहीं है।
कोई भी ऐसी चीज जो कि कॉपीराइट हो सकती है, आप उसका पेटेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिस्टिक वर्क है, जैसे कि कोई पेंटिंग अगर आपने बनाई है, तो आप चाहो कि उस पेंटिंग का अगर हम पेटेंट क्या नाम करना चाहे तो दैट इज नॉट अलाउड। तो उस पेंटिंग का आपको कॉपीराइट फाइल क्या करना होगा, वो पेटेंटेबल नहीं है। तो ये सारे नॉन पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज हैं गवर्नमेंट के कि आपकी जो इन्वेंशन है हो सकता है कि यूनिक हो, इन्वेंटिव हो, पर अगर वो इस क्राइटेरिया में हो रही है, फॉल हो रही है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है। तो जो क्राइटेरिया है यूनिकनेस का, इन्वेंटिव का और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल का, उसका मतलब ये है कि जब आप पेटेंट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने पेटेंट अप्लाई किया 26 मार्च 2025 को, तो आज से पहले आपकी जो इन्वेंशन है वो किसी भी फॉर्म में एंटिसिपेटेड नहीं होनी चाहिए। अब एंटिसिपेटेड का मतलब ये है कि अगर आपने आज पेटेंट फाइल किया है और आपका पेटेंट ऑलरेडी पब्लिश्ड है, गवर्नमेंट की वर्ल्ड में किसी भी फॉर्म में, किसी ने आर्टिकल बना के उसका डाल दिया, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना के उसका डाल दिया, या किसी ने कोई रिसर्च करी आपसे मिलती जुलती और वो आपका और उनका जो है वो सेम है, फीचर्स सेम है, सो इन दैट केस मतलब ये है कि आपकी इन्वेंशन जो है वो नॉवल नहीं है, यूनिक नहीं है, तो आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। अगर आपकी इन्वेंशन यूनिक है तो ही आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप फाइल करते भी हो तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो राइट्स आपको नई 20 ईयर्स के लिए होंगे, मिलेंगे। नॉवेल्टी के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। अब इन्वेंटिव स्टेप का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस बनाया है, उस प्रोडक्ट या प्रोसेस में अगर आपने टेक्निकल स्टेप्स नहीं लिए हैं, मतलब आपने अपनी इंटेलेक्ट को यूज करके नहीं क्रिएट किया है, तो दैट मींस कि आप उसका पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। अगर वो बहुत ऑब्वियस है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को नहीं क्या नाम कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सो इन दैट केस पेटेंटिंग इज नॉट अलाउड। अगर आप फाइल क्या नाम करते भी हो तो वो आपको राइट्स उसमें होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। इन्वेंटिव स्टेप के अलावा इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है। अब चूंकि पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मैकेनिज्म है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि वो साइंटिफिक क्रिएशंस को और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में करें, सो दैट और कॉम्पिटिटर्स आए और सो दैट वो भी अपना रिसर्च क्या नाम करें तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो हो। तो पेटेंट राइट्स जो हैं उनका एक थर्ड क्राइटेरिया ये भी है कि आपने जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है वो इंडस्ट्री में यूज हो सके, ऐसा कोई चीज होनी चाहिए। आप जिन चीजों को इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते तो आप उसका पेटेंट फाइल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन पेटेंट को अप्लाई कर सकता है इंडिया में। तो एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो आप खुद भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका इंस्टीट्यूट है और आपके इंस्टीट्यूट में आईपीआर पॉलिसी बनी हुई है कि जो भी आप पेटेंट क्रिएट क्या नाम करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट क्या नाम करेंगे, उसके जो राइट्स हैं अगर कॉलेज के पास होने चाहिए, तो इन दैट केस कॉलेज कैन आल्सो अप्लाई फॉर अ पेटेंट और आपके पास सिर्फ एकेडमिक राइट्स रहेंगे। पेटेंट फाइल पेटेंट की प्रोसेस के दौरान आप इन्वेंशन क्रिएशन के दौरान कोई अनफॉर्चुनेट किसी के संग कुछ हो जाता है तो उस केस में जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं, जैसे कि उनके फादर हो गए, मदर हो गए, सन हो गए, डॉटर हो गए, वाइफ हो गए, ये सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में आते हैं। तो उस केस में दे कैन आल्सो फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। अब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, प्रोसेस बनाई है, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए पेटेंट के फॉर्म में। मतलब जो इसकी पेटेंट की जो ड्राफ्टिंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल मतलब इसका होता है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी इन्वेंशन क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, आपको क्या क्लेम करना है, तो पेटेंट रिफ्यूज हो सकता है और किसी कोई और इसमें एंटर होके उसने अपने नाम से पेटेंट फाइल किया तो उसको मिल सकता है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आपको पूरा इंग्लिश में आपको बताना होगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको हिंदी में पूरा पेटेंट स्पेसिफिकेशन लिख के आपको देना होगा पेटेंट ऑफिस को कि आप क्या क्लेम क्या नाम कर रहे हो, आपकी फीचर्स क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो,
इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, इसकी मार्केट यूटिलिटी क्या है, इसको हम ये इसको अगर हम यूज क्या नाम करते हैं अगर इंडिया में, तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमको पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर इन्फॉर्म करनी होती हैं। तो जब हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और फाइल करते टाइम पे पेटेंट ऑफिस की फीस होती है जो हमको पेटेंट ऑफिस को पे करनी होती है फाइलिंग के टाइम पे। अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं, स्मॉल एंटिटी हैं या यूनिवर्सिटी हैं तो 1600 रुपए की गवर्नमेंट फी होती है फाइलिंग की। अगर आप लार्ज एंटिटी में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, तो उस केस में आपको 8000 रुपए गवर्नमेंट फी पे करनी होगी पेटेंट ऑफिस को। तो ऐसे छोटी छोटी फीसेस आपको गवर्नमेंट की क्या करनी होती है, पे करनी होती है। तो लगभग फाइलिंग के टाइम पे आपको जो फीस पे करनी होती है टोटल में, अगर आप इंडिविजुअल हैं या कॉलेज हैं उस केस में 12,000 रुपए के आसपास गवर्नमेंट फी होती है। और अगर आप लार्ज एंटिटी हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 40 to 50,000 रुपीज उसकी गवर्नमेंट फी पे करनी होती है पेटेंट ऑफिस को। बाकी अगर आप खुद फाइल करते हैं तो प्रोफेशनल की कोई फीस नहीं होती, पर अगर आप प्रोफेशनल किसी की एक्सपर्टीज लेते हैं तो उस केस में उनकी भी फीस होती है। तो अगर आप मोटा मोटी खर्चा माने तो पेटेंट फाइल करने का जो इंडिया में खर्चा आता है इट टेक्स अराउंड 50 to 60,000 रुपीज। तो ये एक प्रोसेस है पेटेंट फाइल करने की। अब पेटेंट फाइल करने के बाद की जो प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि जो आपने फाइल किया है पेटेंट में, जो आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है प्रोफेशनल के थ्रू करी है, खुद आपने क्या नाम करी है, तो वो गारंटी होगी। पेटेंट ऑफिस चेक करके बताएगा कि आप जो क्लेम कर रहे हो वेदर दैट थिंग इज पेटेंटेबल और नॉट। अगर वो पेटेंटेबल है तो वो आपको बता देगा, और अगर वो नॉन पेटेंटेबल है, वो पेटेंट नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट आपको क्या बता देगी। एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है 6 महीने के अंदर, उसमें मेंशन होता है कि आप जो क्लेम क्या नाम कर रहे हो वो क्लेम के सेक्शन तक वैलिड है। जो क्लेम आप क्या नाम कर रहे हो वेदर वो किसी और ने फाइल क्या नाम किया हुआ है सेम पेटेंट एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें वो चेक करके बताता है पेटेंट ऑफिस। अगर पेटेंटेबल है तो वो पेटेंट हो जाएगा, अगर वो नॉन पेटेंटेबल है तो एप्लीकेंट को 6 महीने का टाइम दिया जाता है टू प्रूव के आप जो क्लेम कर रहे हो वो किस सेक्शन तक वैलिड है। अगर आप प्रूव कर पाते हो तो वो पेटेंट मिल जाएगा, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो और आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं है तो पेटेंट आपको ग्रांट नहीं होगा। ग्रांट ना होने से पहले आपको एक हियरिंग का चांस दिया जाता है। उस हियरिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिकली बुलाते हैं पेटेंट ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिकली आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाते हैं उसमें, और पूछते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हो वो किस सेक्शन तक वैलिड है, आप क्या क्लेम क्या नाम कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो आपने पेटेंट फाइल किया हुआ है उसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं। आप खुद भी अटेंड कर सकते हो और आपके जो प्रोफेशनल है वो भी संग में चाहें तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो अगर वो कन्वेंस हो जाते हैं तो पेटेंट ग्रांट हो जाता है, अदरवाइज वो रिफ्यूज हो जाता है। पेटेंट ग्रांट होने के बाद इस प्रकार का सर्टिफिकेट आता है 20 ईयर्स के लिए। और जब पेटेंट ग्रांट होता है तो पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका काम हो गया, आपको हर साल उसकी फीस पे करनी होती है। जैसे आप इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस अगर क्या नाम खरीदते हैं तो इंश्योरेंस का आपको हर साल एन्युटी पे क्या नाम करना होता है, राइट। तो इस केस में भी पेटेंट के केस में भी आपको हर साल रिन्यूअल फीस क्या नाम करनी होती है। अगर आप फीस पे करते हैं तो पेटेंट कंटिन्यू रहेगा, अगर आप नहीं फीस पे क्या नाम करते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं होगा और वो पेटेंट आपका सीज हो सकता है। पेटेंट मिलने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास उस इन्वेंशन को यूज करने का राइट है। आप उस इन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, खुद भी चाहें तो यूज क्या कर सकते हैं, और आप इसको लाइसेंस करना चाहें तो लाइसेंस भी हो सकता है। आप उस पेटेंट को बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं आप उसको। आप उस पेटेंट को डोनेट करना चाहें दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसके अतिरिक्त आप खुद भी यूज कर सकते हैं, आप लोगों को रोक भी सकते हैं कि नो यू कैन नॉट यूज माई इन्वेंशन। मतलब आपके पास खुद भी राइट है उसको यूज करने का, और आप लोगों को रोकने का भी आपके पास राइट है। तो ये राइट्स आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मिलते हैं। अगर आप पेटेंट फाइल नहीं करेंगे तो आपके पास ये राइट्स नहीं आएंगे। तो अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है, कुछ क्रिएट किया है,
the first important thing which is to file a patent application for that. If you are not filing it, आपके पास वो rights नहीं होंगे. कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेटेंट्स के, अगर शायद ये इन लोगों ने पेटेंट फाइल नहीं किए होते तो शायद जैसे कि लाइट बल्ब हो गया. लाइट बल्ब जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने 1878 में क्रिएट किया था, इसको पेटेंट किया था, राइट. टेलीफोन है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन क्रिएट किया था तो उसको पेटेंट फाइल किया था 1876 में. आईसी इंजन, आज हमारी गाड़ियों में जो आईसी इंजन आते हैं, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि किसी ने ये क्रिएट किया और उसका पेटेंट फाइल किया, तो और उसको मार्केट में लेकर आए. तो 1823 में ये पेटेंट फाइल हुआ था. फिर उसके बाद जो 4 स्ट्रोक इंजन आया वो 1876 में आया. 2 स्ट्रोक इंजन आया वो 1879 में आया. तो ये एक ऐसे इन्वेंशंस हैं जिनके बिना लगता है कि लाइफ बहुत इनकम्प्लीट होती. और इन लोगों ने अगर पेटेंट फाइल नहीं किया होता तो आपको ये पता नहीं होता कि टेलीफोन का जो इन्वेंटर है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, राइट. अगर ये इन लोगों ने पेटेंट फाइल नहीं किया होता तो कोई और अपना क्लेम कर देता इस पर. तो पेटेंट फाइल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखते हैं कि ये इन्वेंशन जो है इन व्यक्ति ने क्रिएट करी है. तो एडवाइस यही है कि अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, आपको लगता है कि इसकी मार्केट यूटिलिटी है और आप इससे मार्केट में कुछ चेंज कर सकते हैं, वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूर उसका पेटेंट फाइल करिए. आपको राइट्स उसमें होते हैं, और नहीं फाइल करेंगे तो कोई और उसको कॉपी करके अपने नाम से पेटेंट फाइल कर सकता है. तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. अब रोल ऑफ एकेडमिया की अगर हम बात करें तो एकेडमिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस समय प्ले कर रहा है वो सिर्फ पेटेंट्स कर पा रहा है. वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो नैक है, जो NIRF की जो रैंकिंग्स हैं, या फिर जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप पेटेंट फाइल करिए. आप अपने स्टूडेंट्स से बोलिए कि वो पेटेंट वो करे फाइल. उसमें अगर वो पेटेंट फाइल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पेटेंट फाइल होते हैं उतनी NIRF रैंकिंग उसमें होती है. नैक जब आता है तो नैक में पेटेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है. तो अगर एकेडमिया में इस समय रोल किसी IP का है तो वो है पेटेंट्स का. तो अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपके स्टूडेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. स्टूडेंट्स, अगर उन लोगों ने पेटेंट फाइल किया है तो अगर वो आगे जाके फॉर एग्जांपल कि कोई उनने प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो उस प्रोजेक्ट का अगर पेटेंट है उनके पास, तो अगर वो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक अलग ही इम्पैक्ट आता है कि हाँ इनके पास पेटेंट है, इन लोगों ने कुछ क्रिएट किया है, इनको गवर्नमेंट से पेटेंट मिल के आया है. दैट मीन्स कि वो यूनिक है, इन्वेंटिव है. तो एक अलग क्रेडिबिलिटी बनती है. फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर वो पेटेंट फाइल करते हैं, उनको पेटेंट अगर मिलता है तो उनके प्रमोशन में ऑब्वियसली मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. और अगर फैकल्टी मेंबर्स ने अगर पेटेंट फाइल किया है तो नैक में उनको अच्छी रैंकिंग्स मिलती हैं, NIRF में अच्छी कॉलेज को रैंकिंग मतलब होती है, उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. तो अगर आपके पास पेटेंट है, पेटेंट कैन पब्लिश है, ग्रांटेड है, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब सेकंड प्रकार के हम IP राइट्स के अगर आए तो वो है ट्रेडमार्क्स. तो पेटेंट जो मिलता है वो इन्वेंशन के लिए मिलता है. ट्रेडमार्क जो है वो आपके ब्रांड्स के लिए मिलता है, आपके नाम के लिए मिलता है. इसका मतलब ये है कि ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड फॉर अ वर्ड, सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, न्यूमरल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड, अगर आपने अपनी शॉप का नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल PNA, मेरी कंपनी का नाम रख दिया, राइट, और मैं चाहूं तो मैं उसका ट्रेडमार्क कर सकता हूं. मैं चाहूं कि मेरे वर्ड का पेटेंट हो जाए तो वो अलाउड है नहीं, बिकॉज पेटेंट मिलता है इन्वेंशंस के लिए. ट्रेडमार्क के लिए अगर मुझे ट्रेडमार्क करना है तो मुझे PNA का नाम पे ट्रेडमार्क कर सकता हूं, है ना, क्योंकि ये मेरी ओनरशिप है, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया गया.
अगर मैं इसका ट्रेडमार्क फाइल करता हूं तो मेरे पास उसके लीगल राइट्स हैं कि कोई अगर मेरे ट्रेडमार्क को यूज क्या नाम करेगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। मेरे नाम को अगर कोई कॉपी करके उसको कोई मार्केट में लेके आएगा तो मेरे पास उसके राइट्स है ना। सिग्नेचर का मतलब यह है कि आप अपने सिग्नेचर को भी ट्रेडमार्क कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर का जो पहले एमआरएफ का बैट आता था, उस एमआरएफ के बैट पर सचिन तेंदुलकर साइन होता था, तो दैट सिग्नेचर की जो स्ट्रोक्स है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अब कोई अगर बोले कि नहीं ये ट्रेडमार्क सचिन तेंदुलकर का नहीं है, ये सिग्नेचर क्या मेरा है, तो सचिन तेंदुलकर के पास राइट है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, बिकॉज वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन उसका फाइल्ड है, वो उनका एक्सेप्टेड है, राइट। अब इसके अलावा कोई जैसे आपने अपनी कंपनी का वो बनाया, लोगो बनाया, तो नाम के अलावा आप अपने लोगो का भी ट्रेडमार्क कर सकते हो। लोगो के कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो उनके ब्लैक एंड व्हाइट जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो शेप होता है, वो सारी चीजों का ट्रेडमार्क कर सकते हो। तो अगर कल को कोई आपका लोगो कोई और कॉपी क्या नाम करता है तो आपके पास राइट है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, है ना। अब ट्रेडमार्क लॉ जो है वो गवर्न होता है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 से, मतलब जो ट्रेडमार्क का जो लॉ बनाया गया था वो 1999 में बनाया गया था। अब जैसे कि ये KFC का ब्रांड है और ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड है, तो इसमें आपको नाम लिखने की जरूरत उसमें है नहीं, आप देख के बता सकते हो कि ये KFC है, और आप इसको देख के बता सकते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडमार्क, कि अगर उनका ट्रेडमार्क नहीं होता, उनके पास उसकी ओनरशिप नहीं होती, तो ये आप पहचान नहीं पाते कि ये KFC है कि ये माइक्रोसॉफ्ट है ना। जैसे कि ये स्टारबक्स का वो है साइन है, अगर ये स्टारबक्स कंपनी का ये ट्रेडमार्क नहीं होता तो आप इसको नहीं पहचान पाते कि ये स्टारबक्स का है, राइट। में जो एडिडास का जो वो है साइन है, अगर इनके पास इनका ट्रेडमार्क नहीं होता तो आप उसको नहीं पहचान पाते कि ये जो लोगो है ये एडिडास का है, कोई और अपना इस पर क्या कर लेता, क्लेम कर लेता, है ना। ये यूनिलीवर का साइन है या फॉक्सवैगन का साइन है, तो ये सारी चीजें इसलिए आप पहचान पा रहे हो क्योंकि ये ट्रेडमार्क किसी का रजिस्टर्ड है ना। अगर उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता तो आप इसको पहचान नहीं पाते कि ये ट्रेडमार्क चंद किसका है। ऐसे मिलते जुलते कई सारे ट्रेडमार्क आपके सामने होते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज करते हो जैसे कि आप मिठाई बेचने के लिए स्वीट वर्ड यूज कर रहे हो, या आप स्वीट बेचने के लिए चॉकलेट वर्ड यूज कर रहे हो, है ना, या चॉकलेट बेचने के लिए स्वीट वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव है। तो ऐसे नाम का आप ट्रेडमार्क नहीं कर सकते जिसको देख के बताया जा सके कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, राइट। जैसे कि मैं ग्वालियर से हूं, तो मैं ग्वालियर नाम का ट्रेडमार्क नहीं कर सकता, बिकॉज वो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और मेरे पास उसका राइट नहीं हो सकता ना। तो ज्योग्राफिकली ओरिजिनेटेड चीज जो कि ना डिस्क्रिप्टिव है, जो कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के अगेंस्ट है, जो जैसा कोई ट्रेडमार्क जिसमें कोई हम ऑब्सीन कोई चीज यूज हो रहे हैं, न्यूडिटी यूज हो रही है, हमारे जो देवी देवता हैं उनके बारे में कुछ गलत अगर किसी ने कोई लोगो अगर बनाया है, तो ऐसी चीजों को आप ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका कोई ट्रेडमार्क यूनिक है, नॉन ऑब्वियस नहीं है और किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो उस केस में अगर आप ट्रेडमार्क फाइल क्या नाम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट आपको ट्रेडमार्क के राइट्स आपको देती है। अब जैसे कि पेटेंट के जो राइट्स हैं वो 20 ईयर्स के लिए मिलते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क के केस में क्या है कि इनिशियली राइट्स आपको 10 ईयर्स के लिए मिलते हैं, पर आपको हर 10 ईयर्स में आपको उनको रिन्यू क्या नाम करना होता है, पर हर 10 ईयर्स में आप उसको फीस पे करते हैं, आप उसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि पेटेंट के जो राइट्स है वो स्ट्रिक्ट 20 ईयर्स के लिए है, पर ट्रेडमार्क के राइट्स अगर आप हर 10 ईयर्स में फीस पे क्या नाम कर रहे हो तो हर 10 ईयर्स में आप उसको यूज कर सकते हो, और जितना चाहो लाइफ टाइम आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो आप। ट्रेडमार्क्स कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्ड मार्क हो गया, एक हमारा सर्विस मार्क हो गया, एक हमारा डिवाइस मार्क हो गया और एक साउंड मार्क हो गया। तो इन प्रकार के ट्रेडमार्क्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। एक कलेक्टिव मार्क है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो साइन है वो कलेक्टिव मार्क के अंदर आ गया तो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है। ISI जो मार्क है वो सर्टिफिकेशन मार्क के अंदर आता है, तो आप उसका वो
क्या कर सकते हो। शेप ऑफ गुड्स है, आप चाहो जैसे किटकैट का जो शेप आता है आप उसका ट्रेडमार्क करना चाहो तो आप उसका ट्रेडमार्क कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशंस का ट्रेडमार्क हो सकता है। तो ये प्रकार के ट्रेडमार्क्स हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, है ना। अब ट्रेडमार्क फाइल करने का जो फंक्शन है, जो पर्पस है, वो ये है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस का ओरिजिनेशन कहाँ से है। अब फॉर एग्जांपल सबको पता है कि नाइकी जो कंपनी है वो यूएस बेस्ड है ना। अगर उनका ट्रेडमार्क नहीं होता तो आप बोलते कि नहीं ये तो हरियाणा की कंपनी है, ये तो एमपी की वो कंपनी है, राइट। तो उनका ओरिजिन पता है, आपने उनका ट्रेडमार्क, उनने उनका ट्रेडमार्क फाइल किया, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट लिया हुआ है उनके पास, तो इसलिए हमको पता है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये यूएस बेस्ड केम कंपनी का है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं ये ट्रेडमार्क मेरा है और ये ट्रेडमार्क उसका है। मतलब अगर मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा तो मैं आइडेंटिफाई नहीं क्या कर सकता कि ये ट्रेडमार्क किसी फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड का पर्सन का है। तो ट्रेडमार्क का रोल यहाँ प्ले होता है। और ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो आप क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब लोग एक गारंटी कैन कर पाते हैं कि हाँ ये ट्रेडमार्क्ड है, ये चीज है तो ये अच्छी ही होगी, है ना। एडवर्टीजमेंट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपको उसको टीवी में वो करना है, ऐड करना है। अब टीवी में ऐड के टाइम पे ये हुआ कि आपके पास उसका ट्रेडमार्क है ही नहीं, तो आप उसको कैसे एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो आपके पास कई सारे जो बेनिफिट्स हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको राइट्स मिलते हैं कि भाई आप उसको एडवर्टाइज क्या नाम कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई क्या नाम कर सकते हो, उसकी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है उसकी गारंटी हो सकती है कि हाँ ये एक अच्छा ब्रांड है। तो ट्रेडमार्क इज एन एविडेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपके पास उसका एविडेंस है डॉक्यूमेंट का कि हाँ ये ट्रेडमार्क मेरा है। ट्रेडमार्क के जो राइट्स मिलते हैं वो ये हैं कि आप खुद भी यूज क्या नाम कर सकते हैं और आप लोगों को रोक सकते हैं कि नो यू कैन नॉट यूज माय ट्रेडमार्क। और अगर कोई यूज करता है तो आपके पास लीगल एक्शन लेने का पूरा राइट है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से आता है दैट विद इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि ये ट्रेडमार्क आपका है। आप चाहो जैसे कि पेटेंट के बारे में मैंने बताया कि पेटेंट को आप बेच भी सकते हो, डोनेट भी क्या नाम। Hello, sir. So you have been muted. Kindly turn on your mic. No. Kindly turn on your mic. मैम मैंने टर्न ऑन किया हुआ है, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. It's audible now. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो ट्रेडमार्क का जो बेनिफिट है वो ये है कि वो एक एविडेंस है प्रोप्राइटरशिप का। और सेकंड जो उसका बेनिफिट है वो ये है कि आपको राइट मिलता है टू यूज द ट्रेडमार्क। और अगर कोई यूज क्या नाम करता है आपकी विदाउट टेकिंग द परमिशन, आपके पास लीगल एक्शन करने का राइट होता है। आप अपने ट्रेडमार्क को बेच भी सकते हो, लाइसेंस भी क्या नाम कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि पेटेंट के बारे में मैंने बताया था कि पेटेंट अगर आपके पास है तो आपके पास उसको बेचने का राइट है, उसको यूज करने का राइट है, उसको लाइसेंस करने का राइट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रेडमार्क एज वेल, ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो ट्रेडमार्क भी आपको लाइसेंस करने का, असाइन करने का राइट होता है। ट्रेडमार्क जिनके पास होता है वो एक गुडविल उनके संग एसोसिएटेड होती है कि ये ट्रेडमार्क है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क फाइल करने के बड़े बेनिफिट्स हैं। अगर आप फाइल नहीं
अगर आपने कोई ब्रांड क्रिएट क्या नाम किया है, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है कई आगे जाके खुद का स्टार्टअप क्या नाम करें, स्टार्ट करें, या कई जॉब क्या नाम करें। तो अगर आपने कुछ क्रिएट किया, अगर आपने कोई शॉप अगर आपने क्या नाम खोली है, या कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस केस में ट्रेडमार्क फाइल करना बड़ा मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज आजकल गवर्नमेंट का भी रूल हो गया है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आपको वो कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उससे नहीं आपको उसमें मिलेंगे। तो अगर ट्रेडमार्क है तो आपको उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, और नहीं है तो वो बेनिफिट्स नहीं आपको उसमें मिल पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकता है। जैसे कि पेटेंट के केस में ये है कि आप खुद भी क्या नाम कर सकते हो, कंपनी भी अप्लाई क्या नाम कर सकती है, यूनिवर्सिटी भी अप्लाई क्या नाम कर सकती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रेडमार्क एज वेल, आप खुद भी फाइल कर सकते हो। आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी के नाम से भी ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका कोई एनजीओ है, एनजीओ के नाम से ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के नाम से भी ट्रेडमार्क हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए कोई भी अप्लाई क्या कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपने जो एडवोकेट असाइन किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आए, आपने मेरे से बोला कि प्रतीक जी आई वांट टू फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, तो मैं भी वो फाइल कर सकता हूँ, पर आपके बिहाफ पर, मेरे नाम से फाइल नहीं होगा, आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप एप्लीकेंट हैं, आपको मैं रिप्रेजेंट क्या नाम कर रहा हूँ। तो एप्लीकेंट खुद भी फाइल कर सकता है, और जो उनके एडवोकेट हैं जो कि ऑथराइज हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। अब ट्रेडमार्क जब हम एप्लीकेशन फाइल होती है तो उनके कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। अगर आपने ट्रेडमार्क फाइल किया फॉर एग्जांपल मेडिसिन में, तो मेडिसिन क्लास 5 में जाएंगे। आपने ट्रेडमार्क फाइल किया फॉर लीगल सर्विसेज, तो लीगल सर्विसेज 45 के अंदर जाएंगे। आपने ट्रेडमार्क फाइल किया फॉर ई कॉमर्स ब्रांड, तो ई कॉमर्स जाएगा 35 के अंदर। आपने कुछ कपड़े की दुकान खोली है या कपड़े का कोई ब्रांड स्टार्ट किया, तो दैट विल कम अंडर 25। तो हर प्रकार के क्लासिफिकेशंस जो हैं वो ट्रेडमार्क ऑफिस ने बनाए हुए हैं। तो आप जिस कैटेगरी में करते हैं फॉल, उस कैटेगरी में जाके आप ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं। अब ट्रेडमार्क फाइल करने की जो फीस है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं या एमएसएमई है, तो 4,500 रुपए से गवर्नमेंट फी, और इसके अलावा अगर आप लार्ज एंटिटी हैं तो वो 9,000 रुपए की फीस आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। इसके अलावा अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट फी लगेगी। किसी प्रोफेशनल की एक्सपर्टीज ले रहे हैं तो उनकी फीस अलग उसमें होती है। तो ये फीस पे कम करनी होती है। जो इंडिया में ऑफिसेज हैं वो लगभग 5 ट्रेडमार्क ऑफिस हैं और 4 पेटेंट ऑफिस हैं। पहला जो ऑफिस है वो मुंबई में है फॉर सेंट्रल वेस्टर्न जोन, और नॉर्थ के लिए हमारे पास दिल्ली पेटेंट ऑफिस है। फॉर ईस्टर्न जोन जैसे कि हमारा बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, इनके लिए कोलकाता पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस है। गुजरात और राजस्थान के लिए भी है अहमदाबाद ट्रेडमार्क ऑफिस। फॉर साउथ जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनके लिए चेन्नई पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां फिजिकली जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है। आप इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आपके पास ऑनलाइन कैन सिग्नेचर है तो आप उसको यूज करके खुद भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो घर पे बैठ के। और आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज क्या नाम करते हो तो वो भी कहीं फिजिकली जाके फाइल नहीं करेगा। उनके पास जो डीएससी है, जो उनके पास कैन सिग्नेचर है, उनको यूज करके दे विल फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो ट्रेडमार्क का टर्म एज आई से कि 10 इयर्स के लिए होता है इनिशियली, और हर 10 इयर्स में आप उसको फीस पे करके यूज क्या नाम कर सकते हो। जैसे कि पेटेंट्स में नॉर्मली ये होता है कि पेटेंट की जो राइट्स हैं सिर्फ 20 इयर्स के लिए, 20 साल के बाद आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा। पर ट्रेडमार्क के केस में आपको 10 इयर्स के लिए तो राइट्स मिलते ही हैं, पर 10 ईयर का टर्म कंप्लीट होने के बाद आप फीस पे क्या कर सकते हो, तो फिर 10 इयर्स के लिए आपको राइट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही वो सेकंड 10 ईयर का टर्म है वो कंप्लीट होने वाला हो तो आप फिर से फीस पे कर दिए, तो हर 10 इयर्स के लिए आपको राइट्स मिलेंगे। तो लाइफ टाइम के लिए आप उसको यूज। Hello, sir. Sir, again, mic has been turned off. ये पता नहीं क्यों हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। Yeah, it's fine now. मैंने म्यूट नहीं किया है एनीवेज।
नो It's इश्यूज, okay, sir. हाँ नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। तो ट्रेडमार्क के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जैसे कि ताजमहल होटल जो है हमारा बॉम्बे का, उसका जो एक्सटीरियर है जिसको हम फसाद बोलते हैं, दैट इज आल्सो अ ट्रेडमार्क ओन्ड बाय टाटा कंपनी, राइट। तो जो ताज होटल है बॉम्बे का, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, जो उसका शेप है पर्टिकुलर, तो वो शेप इज आल्सो अ ट्रेडमार्क। जो बॉम्बे में जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज आल्सो अ ट्रेडमार्क ओन्ड बाय सम कंपनी, उसका नाम मेरे को नहीं पता क्या है। तो ये ट्रेडमार्क हो सकते हैं। तो आप बिल्डिंग के शेप के लिए भी ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सचिन तेंदुलकर का जो सिग्नेचर है, दैट इज आल्सो अ ट्रेडमार्क ओन्ड बाय सचिन तेंदुलकर। शाहरुख खान का जो रोमांटिक पोज है जो कि बड़ा फेमस है, दैट इज आल्सो ट्रेडमार्क ओन्ड बाय शाहरुख खान। तो नाउ लेट्स से इफ समवन वांट्स टू यूज इट कमर्शियली, तो वो यूज नहीं क्या नाम कर सकते, बिकॉज उनको पहले परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन लेते हैं देन यस दे कैन यूज इट, अदरवाइज शाहरुख खान हैज ऑल द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अब तीसरे प्रकार का जो राइट है वो है कॉपीराइट। मतलब जो सबसे ज्यादा आजकल जो बात होती है वो या तो पेटेंट के बारे में होती है, या ट्रेडमार्क के बारे में होती है, या कॉपीराइट के बारे में होती है। तो कॉपीराइट की अगर हम बात क्या नाम करें, कॉपीराइट का जो एक्ट है वो सबसे पुराना है इंडिया में, 1957 का एक्ट है। और जो उसके रूल्स हैं वो 2013 में एक बार अमेंड हुए और 2021 में एक बार अमेंड हुए। तो कॉपीराइट का मतलब अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि क्रिएटर्स को मिलता है। जैसे कि कोई लिटरेरी वर्क है, जैसे कि कोई किताब अगर आपने लिखी है, कोई ड्रामेटिक वर्क आपने क्या में किया है, कोई म्यूजिकल वर्क आपने वो किया है, या कोई आर्टिस्टिक वर्क आपने वो किया स्टार्ट किया है, सो इन दैट केस आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। आप उनका पेटेंट नहीं क्या कर सकते, पर कॉपीराइट ले सकते हो। तो अगर लिटरेरी वर्क है, जैसे कि पोइट्री हो गई, बुक हो गई, ऐसे हो गया, प्लेज हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, कैटलॉग्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, आप उनका कॉपीराइट कर सकते हो लिटरेरी वर्क के अंदर। आर्टिस्टिक वर्क के अंदर जैसे कि पेंटिंग्स हो गए, ड्राइंग्स हो गए, स्केचेस हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, तो ये सारे आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आते हैं, आप उनका कॉपीराइट ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई ड्रामेटिक वर्क है, कोई स्क्रीन प्ले है, आप उसका ट्रेडमार्क कर सकते हो, ले सकते हो। कोई म्यूजिकल वर्क है, कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है, आप उसका ट्रेडमार्क कर सकते हो, ले सकते हो। कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, आप उनका ट्रेडमार्क क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी कॉपीराइटेड। अब कॉपीराइट क्या नहीं हो सकता, वो ये है कि कोई इंटेंजिबल आइडिया है जो आपको लगता है कि ये आइडिया है, इसका हम कॉपीराइट करना चाहें, तो आइडिया का कॉपीराइट नहीं हो सकता। आइडिया के लिए पेटेंट फाइल होता है, प्रोवाइडेड दैट आइडिया हैज टू बी यूनिक एंड इन्वेंटिव। तो इंटेंजिबल आइडियाज का आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। मेथड ऑफ ऑपरेशंस इज आल्सो नॉट कॉपीराइटेबल। मेथड ऑफ सिस्टम वो भी कॉपीराइट नहीं हो सकता उसका। फैक्ट्स का कॉपीराइट नहीं हो सकता। अगर आपके पास कॉपीराइट के राइट्स हैं तो पहला राइट आपको मिलता है कि आप पब्लिकली कम्युनिकेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर आर्टिस्टिकली जो आपने चीज बनाई है उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। अब ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि कोई किताब अगर आपने लिखी है इंग्लिश में, है ना, और आप चाहते हो कि ये हिंदी में आए, तो आप उस बुक को ट्रांसलेट करके अपने नाम से हिंदी में भी पब्लिश कर सकते हो, बिकॉज वो आपका कॉपीराइट है। इसके अतिरिक्त इसका एक और एग्जांपल ये है कि पहले जो मूवीज आती थी, साउथ की जो मूवीज आती थी, तो साउथ की मूवीज को वो हिंदी में डब होके हमारे पास आती थी, राइट। तो जो उस मूवी का जो प्रोड्यूसर है, जो उस मूवी का जो ओनर है, उनके पास उसका कॉपीराइट है कि वो उस पर्टिकुलर मूवी जो कि इंग्लिश में है या साउथ की किसी लैंग्वेज में है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर सकते हैं। तो अगर वो हिंदी में करते हैं तो उनको वो हिंदी में ट्रांसलेट करने का उनके पास राइट है। तो अगर आपके पास कॉपीराइट है, आपने पहले देखा होगा कि जो सीडीज आते थे तो सीडीज के पीछे होता था सी लिखा होता था, तो सी का मतलब है कॉपीराइटेड है। अभी जो किताबें आती हैं, बुक्स आती हैं, बुक में भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि कॉपीराइट ओन्ड बाय फॉर एग्जांपल अरिहंत पब्लिकेशन, ना। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो किताब है दैट इज अ कॉपीराइट,
अगर कोई उसकी कंटेंट को चोरी करने की कोशिश जन्म करेगा तो कॉपीराइट के अंदर उस ओनर के पास राइट है कि वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो फोटोकॉपी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर हम लीगली वो करें बात उसमें, तो अगर आप फोटोकॉपी करके उसको बेच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि वो आपका कॉपीराइट है ही नहीं। वो जिसका कॉपीराइट है सिर्फ उसी के पास उसका राइट है। जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि पेटेंट राइट्स हैं वो मैंडेटरी होते हैं, ट्रेडमार्क राइट्स आर आल्सो मैंडेटरी, पर कॉपीराइट के केस में इट इज नॉट मैंडेटरी। द मोमेंट यू क्रिएट इट बिकम्स योर कॉपीराइट। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो आपने बनाया, तो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं आप, तो वो उसी टाइम आपका कॉपीराइट हो जाता है। अब अगर मैं चाहूं कि आपकी वीडियो को मैं डाउनलोड करके चोरी से अपने नाम से वो करूं, अपलोड क्या नाम करूं, तो कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो किसी और का कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, अब चूंकि जिसने वीडियो बनाया है वो कॉपीराइट तो नहीं इसने क्या किया होगा, लिया होगा, पर इट इज हिज कॉपीराइट। मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता। बेहतर उनने कॉपीराइट फाइल किया हो नहीं फाइल किया, वो अलग वो है। लेकिन जैसे ही उनने कुछ क्रिएट किया है तो मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैं करता भी हूं तो एक एग्जांपल यही है कि यूट्यूब पे जैसी वीडियो बना के डालते हो आप, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। या फिर फेसबुक पे अगर आपने कोई अपने शादी का वीडियो बना के डाला फॉर एग्जांपल, और उस शादी के वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यशराज फिल्म्स का है ना, तो जैसे ही आप क्या नाम करते हो अपलोड, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करता है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हटा देता है। क्या देता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक है, ये कॉपीराइट ओनर का है, तो आप इसको नहीं क्या नाम कर सकते, यूज कर सकते। तो ये चीजें हैं कॉपीराइट, ये इंपॉर्टेंस है कॉपीराइट की। तो अब चूंकि मैंडेटरी नहीं है तो फिर फाइल करना जरूरी क्यों है? अगर हम छोटे स्तर की बात करें तो मे बी यस इट इज नॉट मैंडेटरी, पर किसी आप जैसे कोई मूवी अगर आप बना रहे हो, है ना, कल को मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो कोई क्लेम करने आया कि नहीं ये स्क्रिप्ट आपकी है ही नहीं, ये स्क्रिप्ट हमारी है, तो आपके पास दिखाने को होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हमारा है ये। अगर कोई चीज कोर्ट में जाती है तो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किस चीज पर चैलेंज करोगे, है ना। तो इट बिकम्स मैंडेटरी, समटाइम्स इट बिकम्स नॉट मैंडेटरी, किसी किसी केस में जरूरी नहीं भी होता है। पर एडवाइजेबल यही है कि अगर आपके ने कोई चीज बनाई है, आपको लगता है कि इसका मार्केट पोटेंशियल है, तो उसका कॉपीराइट ले लेना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, इसकी फीस भी कंपैरेटिवली कम है पेटेंट और ट्रेडमार्क के कंपैरिजन में। इसको अगर हम फाइल करना चाहें तो 500 रुपए की एप्लीकेशन फाइल होती है कॉपीराइट की। जो अटॉर्नी चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, पर आप खुद भी चाहो तो उसको फाइल कर सकते हो, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर आपने बनाई है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई और उसको कॉपी क्या नाम करे, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही है, आपको राइट्स मिलते हैं, इसमें अच्छे खासे राइट्स मिलते हैं। हाँ, पेटेंट और ट्रेडमार्क के जो राइट्स हैं वो मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आते हैं। कॉपीराइट का जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। मतलब ये है कि पेटेंट अगर आप क्या नाम करते हो चोरी, तो हो सकता है कि आपको जेल ना हो, आप पे फाइन लगा के ही आपको फ्री चर्न कर दिया जाए। ट्रेडमार्क के केस में भी यही है कि अगर आपने ट्रेडमार्क चोरी किया है तो हो सकता है कि आपको जेल ना हो, आपके पास फाइन भी ना लगे। पर अगर आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या नाम किया है तो 6 महीने से 2 साल की जेल तो पक्की है, और इसके अलावा भी फाइन जो वो लगता है वो अलग है। बाकी के जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं, कॉपीराइट किसी किसी केस में नॉन बेलेबल है। तो कुछ भी करने का है, किसी का कोई कॉपीराइट है, कोई किसी का कोई आईपी है, कोशिश करें कि हम ना कॉपी करें उनका। हमारा कोई कॉपी करे तो हाँ वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम, पर हम कोशिश करें कि हम किसी का ना वो करें, कॉपी करें। क्योंकि रिसर्चेस में यही होता है, कॉपीराइट की जो आजकल जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो प्लेगरिज्म का बड़ा वो आ गया है, क्या चक्कर आ गया है। तो अगर आप कॉपी करते हैं और जिसको ओरिजिनल क्रिएटर है, अगर वो अच्छा आदमी हुआ तो वो तो नहीं करेगा, चलो ठीक है जाने दो जो हो गया। अगर कोई थोड़ा एजुकेटेड आदमी फंस गया कोई, तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो आपकी जो पीएचडी है वो भी गई और आपके खिलाफ जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है वो अलग। तो अगर आप चाहें तो मेरा एडवाइस यही है कि
एटलीस्ट कोशिश करें कि कॉपीराइट में हाथ ना लगाएं, किसी का कोई कंटेंट चोरी ना करें, क्योंकि जब तक वो कंटेंट चोरी सामने नहीं आ रहा है इट्स गुड, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सामने आ गया तो फिर वो जो पर्सन है उसके पास पूरे राइट है एक्शन लेने के, राइट। तो ये कॉपीराइट के बारे में है। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल कैन डिजाइन होता है, जैसे कि पेटेंट में जो राइट्स मिलते हैं आपको आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर मिलते हैं, मतलब उसमें क्या यूनिकनेस है, आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, क्या प्रोसेस क्रिएट किए गए। ये जो आपका डिजाइन रजिस्ट्रेशन है दैट इज रजिस्टर्ड ओनली ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। अब कोको कोला की बोतल आप देखिए, अब कोको कोला की बोतल देख के बता सकते हो आप कि ये कोको कोला की बोतल है। अगर इसमें मैं वो ब्रांड हटा भी दे तो अभी आप देख के बता सकते कि कोको कोला की बोतल है। क्यों? क्योंकि उसके पास उनके डिजाइन राइट्स हैं उनके पास। जब उनने कोको कोला की बोतल लेके आए होंगे तब उनने एक पर्टिकुलर शेप बनाया होगा और उस शेप का डिजाइन पेटेंट लिया होगा, तो आप देख के बता सकते हो कि ये जो बोतल है वो कोको कोला की है, या फॉर दैट मैटर पेप्सी की है, या फॉर दैट मैटर थम्स अप की है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसका आपने शेप चेंज किया है तो यस आप उसका डिजाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसके अलावा इनके एग्जांपल हैं, जैसे कि आप ज्वेलरी है, तो उस ज्वेलरी का अगर आपने कोई ज्वेलरी का आपने शेप चेंज किया है, जो ऐसे कि आप कुछ फैशन डिजाइनर हो तो आपने कुछ कपड़े में कुछ अच्छे वो टेक्सचर्स लेकर आए आप, तो आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो डिजाइन के अंदर। अगर कल को कोई और कॉपी क्या करता है तो आपके पास राइट है उनके खिलाफ एक्शन लेने का, है ना। अब डिजाइन का जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर पेटेंट जैसा ही है, मतलब यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक नहीं है तो आप उसका डिजाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। डिजाइन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसका डिजाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, राइट। इसका प्रोसीजर सिंपल है, पेटेंट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रेडमार्क का भी आसान है, कॉपीराइट का भी आसान है, डिजाइन का भी आसानी है। आपको जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके अलग अलग प्रकार की फोटो खींचने हैं, 7 प्रकार के व्यूज के, और आपको एप्लीकेशन क्या नाम करनी है, फाइल क्या नाम करनी है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस वो चेक करके बताएगा कि जो आप क्लेम कर रहे हो वेदर इट इज यूनिक और नॉट। अगर वो यूनिक है आपको राइट्स मिलते हैं 10 ईयर्स के लिए इनिशियली, वो फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं। तो जो टोटल प्रोटेक्शन मिलती है वो 15 ईयर्स के लिए मिलती है। 15 ईयर्स के बाद उसको कोई भी यूज क्या नाम कर सकता है, और लेकिन 15 साल के अंदर अगर कोई उसको यूज क्या नाम करता है तो आपके पास राइट है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो ये है बेसिक्स ऑफ आईपी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे को बताइए। प्रॉब्लम के साथ से भी सर आएंगे ना। It was really a wonderful session, sir. Now the house is open for discussion session. If there are questions, the participants may ask their queries to our resource person. Ma'am, I need some information on creating policy document, because that is also something asked for, calculating our scores for API. So being an academician, how and what would be as a part of policy document? So policy document means you want to create it for your institute, right? Yes, yes. Yeah, see, like you can create the IPR policy for your institute, wherein you can mention as to like who will own the rights. For example, if college is filing, for example, if college is spending an X amount on any innovation or any research, so in that case, college will be the owner. And if students are spending, for example, X amount on any innovation, in that case, college or in that case, student will be the owner of that IP. So all these things could be mentioned into that IPR policy.
So if you want a particular detail on this IPR policy, you can drop me a message personally. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. So क्योंकि अभी यहाँ पे हम पूरी explain भी नहीं हो पाएगी वो चीज. मैं अपना हाँ phone जी, हाँ number जी. explain अपना. Uh, You can Yes, yes. Suppose, sir, I'm the member of IPR cell of my university. So we created a policy document here. So Okay. that is within the territory of the university. I mean, no other agency is, remarking or labeling that as a, universal document. So is that internal document would be treated as a policy document for Yes. API calculation as well? Yeah. See, if board members are signing the document, that means that policy is enforceable. And everyone under the ambit of that university has to follow that rule. Right, sir. Right. So it's So, not okay, sir. I'll ping you on the WhatsApp anytime, also, and we will discuss that. anytime. Sir, anything other than the institutional policy which we are preparing, is that anything else which is a part of policy document? See, yeah, apart from that, you need to register yourself under the Kapila scheme. So that Kapila scheme is important because, Kapila scheme के अंदर ये है कि अगर आपने पेटेंट फाइल किए हैं तो 100 पेटेंट तक की जो गवर्नमेंट फी है वो गवर्नमेंट आपको वापस कर सकती है. Now let's say आपकी जो गवर्नमेंट फी है पर पेटेंट की 5,500 रुपए फॉर एग्जांपल. हाँ, करेक्ट. 100 पेटेंट अगर आप क्या नाम करते हैं फाइल तो 5.5 लाख रुपए की जो फीस है वो आपकी वापस आ सकती है. जी. Okay. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी प्रोफेशनल फीस है वो तो वापस नहीं आती है. पर लेकिन अगर गवर्नमेंट फी अगर आप कपिला के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो फीस वापस आ जाएगी. कपिला में सर इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराना पड़ेगा या हम इंडिविजुअल मेंबर भी? इंस्टीट्यूट को. आपको एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक कमेटी बनानी होगी जैसे कि आपका IIC होगा सेल. तो IPR सेल में एक लीगल एक्सपर्ट भी होता है, एक रिसर्चर भी होता है, एक उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी होता है. तो इन सारे लोगों की टीम क्रिएट होके फिर कपिला में रजिस्टर होता है. जी. Yes, sir. Okay. So yeah, if you are registering under the Kapila scheme, you can get at least 5.5 lakh rupees from the government. ओके सर आपने क्या बताया, एक तो कुछ तो सर मेंबर्स होंगे 4 या 5 व्हाटएवर द साइज ऑफ द पैनल, एंड देन देयर विल बी लीगल एक्सपर्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट. एक और आपने कुछ बताया था सर? रिसर्चर होते हैं, मतलब जी. मैं कपिला स्कीम का आपको लिंक भेज दूंगा मैं आपको. जी सर. अगर आप वो देखेंगे मैं लिंक में चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. यस सर प्लीज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वेरी इंफॉर्मेटिव. यस थैंक यू. Any other query? House is open for the discussion session. You can post your queries in the chat box also. We will take your queries. Okay, thank you. Thank you so much, sir. As we have come to the conclusion of this enlightening and thought-provoking workshop, so it's my privilege and honor to extend an heartfelt word of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I express my sincere gratitude to our distinguished speaker and resource person who have shared their invaluable insights on intellectual property rights. Your expertise and thought-provoking discussion have not only deepened our understanding, but also inspired us to integrate IPR effectively into our academic and research endeavors. A special thanks to our principal, Madam Dr. Aarti Trehan, for gracing this occasion with her presence. Your encouraging words and support have added immense value to this event. I extend my deepest appreciation to our organizing committee, faculty members, and staff who have worked tirelessly to make this workshop a grand success. Your dedication and teamwork have been instrumental in ensuring the smooth execution of this event. To our participants, researchers, academicians, and students, thank you for your active engagement, enthusiasm, and thought-provoking discussion. Your curiosity and willingness to learn are what
make such events meaningful and impactful. A special note of thanks to our technical team and all the supporting staff for their behind the scene efforts in making this event possible. Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude to our institution, organization, for providing us with a platform and resources to host this important workshop. With this, I formally conclude today's proceedings. Thank you once again, and we look forward to more such fruitful interactions in the future. Wishing you all the best in your academic and research endeavor. Thank you. The feedback form has been shared in the chat box. We are sharing the feedback form in the chat box. You are kindly requested to fill it timely, as after 30 minutes, we are going to close the form. So for the issuance of certificate, you are requested to wait for 15 days. Certificate will be received on your registered email IDs. So all the participants, kindly check your inboxes or spam boxes. Sometimes mail certificate can be reflected in your spam box also. So you are requested to wait for 15 days. Kindly be patient and remain joined us on the WhatsApp group also. All the updates will be sent on your registered mail IDs as well as in the WhatsApp group. So thank you so much. Let us conclude this workshop with the national anthem. So I request to kindly stand up on your seats for the national anthem. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Jai Bharat, Jai Hind.